اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں پنجاب میں مختلف ترقیاتی اسکیموں کے لیے فنڈز کی منظوری. لیڈی ویلنگٹن اسپتال کی اپ گریڈیشن کے لیے 69 کروڑ 53 لاکھ روپے کی منظوری. اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز حسن رضا سے. حسن، آگاہ کیجیے گا. صبح پنجاب میں مختلف سیکٹرز کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 10 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 23 ارب 56 کروڑ 10 لاکھ 90 ہزار روپے کے قریب منظوری دے دی گئی ہے. اور اس اجلاس کی صدارت چیئرمین محکمہ ترقیاتی منصوبہ بندی بورڈ علی سرفراز حسین نے کی، جس میں پنجاب رورل سسٹینیبل واٹر اینڈ سینیٹیشن منصوبہ پائلٹ فیز کلسٹر ساؤتھ ٹو 3 لیاقت پور کے لیے 2 ارب 10 کروڑ روپے جاری کیے منظوری دی گئی ہے. اسی طرح پنجاب رورل سسٹینیبل واٹر اینڈ سینیٹیشن منصوبہ جو سینٹرل 1 بوانا کے لیے 90 کروڑ روپے کے قریب منظوری دی گئی ہے. اسی طرح تحصیل خیرپور بھاورپور میں 1 ارب 33 کروڑ روپے اور اسی طرح فیز کلسٹر نارتھ کے لیے 1 ارب 44 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی ہے. لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل لاہور میں ایمرجنسی آپریشن تھیٹر، ریڈیالوجی، لانڈری اینڈ پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ ترمیمی کی اپ گریڈیشن کے لیے تقریباً 70 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی ہے. اور پنجاب میں آن لائن شماریاتی نظام کی ترقی ترمیمی کے لیے 60 کروڑ روپے سے زائد کی منظوری دے دی گئی ہے. اس حوالے سے محکمہ خزانہ پنجاب کو باقاعدہ انوائس جاری کی جا رہی ہے کہ یہ فنڈز بھی جاری کیے جائیں. جی بہت شکریہ حسن، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. خبر شامل کریں. سمن آباد موڑ انڈر پاس کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری. لیسکو نے سروسز کی منتقلی کے لیے مختصر شٹ ڈاؤن کا شیڈیول جاری کر دیا. شیڈیول کے مطابق کل بروز بدھ صبح 8 بجے سے 9:30 بجے تک بجلی بند رہے گی. اسی پر بات کریں گے زین العابدین سے. زین، اس شیڈیول بارے بتائیے گا. زین، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو اس شیڈیول سے متعلق آگاہ کیجیے گا. کی جانب سے یہ سخت ہدایات زین سے رابطہ بحال کریں گے. ابھی آپ کو بتایا جا رہا ہے سمن آباد موڑ انڈر پاس کی تعمیر پر کام تیزی سے جاری ہے اور لیسکو نے سروسز کی منتقلی کے لیے مختصر شٹ ڈاؤن کا شیڈیول جاری کر دیا ہے. اسی پر بات کریں گے زین العابدین سے. جی زین، بتائیے گا. ایل ڈی اے کی جانب سے ملتان روڈ پر سمن آباد کے مقام پر انڈر پاس کی تعمیر کا کام جاری ہے. تاہم تعمیراتی کام کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے جو لیسکو کی سروسز ہیں ان کی منتقلی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. تو اسی تناظر میں لیسکو نے اپنی سروسز کی منتقلی کے لیے منصوبے سے منسلک علاقوں میں کل صبح مختصر شٹ ڈاؤن کا شیڈول جاری کر دیا ہے. اس شیڈول کے مطابق کل بروز بدھ صبح 8 بجے سے 9:30 بجے تک سمن آباد سے ملحقہ علاقوں میں بجلی بند رہے گی، جس میں گلشن رابی گریڈ اسٹیشن کے 3 فیڈر جس میں یونین پارک، جناح کالونی اور گلزیب کالونی شامل ہیں، ان علاقوں میں بجلی بند رہے گی. لیسکو انتظامیہ اور ایل ڈی اے کی انتظامیہ کی جانب سے ملحقہ علاقوں کو اس شٹ ڈاؤن کے بارے میں اطلاع بھی کر دی گئی ہے. یہ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ لاہور کے دوران ایل ڈی اے انتظامیہ کو یہ سخت ہدایات جاری کی گئی تھی کہ لیسکو کی مدد کے ساتھ شٹ ڈاؤن کر کے لیسکو کی جو سروسز ہیں ان کی منتقلی کو جلد از جلد ممکن بنایا جا سکے تاکہ شہر لاہور کے جو زیر تعمیر پروجیکٹس ہیں یہ بر وقت مکمل ہو سکیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ زین العابدین، آپ نے آگاہ کیا. اور ابھی آپ کو بتائیں نگراں پنجاب حکومت نے ایک بار پھر بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے کر دیے. احمد علی کمبو سیکرٹری قانون پنجاب تعینات کر دیے گئے. ممبر ٹیکس بورڈ آف ریونیو ثاقب منان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. امبرین ساجد ممبر وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم تعینات. تفصیلات جانتے ہیں حسن رضا سے. حسن رضا، بتائیے گا اس حوالے سے. جی بالکل، پنجاب حکومت نے ایک بار پھر بڑے پیمانے پر تقرر تبادلے کے احکامات جاری کیے ہیں. 34 افسران کے تقرر تبادلے کے احکامات جاری کرتے ہوئے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے. سیکٹری لٹریسی وزیر اللہ کنڈی کو عہدے سے ہٹاتے ہوئے او ایس پی بنایا گیا ہے. سیکٹری ریگولیشن احمد علی کمبو کا تبادلہ کرتے ہوئے احمد علی کمبو کو سیکٹری قانون پنجاب تعینات کیا ہے. افتخار علی ساہو کو سیکٹری زراعت پنجاب، سید حیدر اقبال سیکٹری لٹریسی پنجاب تعینات کیے گئے ہیں. سلمان اعجاز سیکٹری پاپولیشن پنجاب کو ایس پی کر دیا گیا ہے، جبکہ سیکٹری پرائمری سیکنڈری ہیلتھ علی جان خان کو سیکٹری پاپولیشن پنجاب کا اضافی تاج دیا گیا ہے. امجد علی اوان سی ای او پیپرا کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. اقبال حسین کو سی ای او پیپرا تعینات کیا گیا ہے. عرفان احمد سندھو سیکٹری ریگولیشن پنجاب تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ ثاقب منان ممبر ٹیکسز کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور طارق قریشی کو ممبر ٹیکسز بورڈ آف ریونیو تعینات کیا گیا ہے. محمد ارشد منظور ڈی جی لیبر کو عہدے سے ہٹا دیا ہے. راشد کمال الرحمان ڈی جی لیبر تعینات کیے گئے ہیں. آغا محمد علی عباس ممبر کنسالیڈیشن بورڈ آف ریونیو تعینات کیا گیا ہے. سیکٹری ہیومن رائٹس احمد عزیز طارق کو ایس پی بناتے ہوئے ان کو فورس میں کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور احمد مستجاب کرامت کو
सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स एंड मिनॉरिटी अफेयर पंजाब तैनात किया गया है। अमरीन साजिद मेंबर वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम तैनात की गई है। फैसल ज़हूर को मेंबर जुडिशल को ओएसडी बना दिया गया है। सालेहा सईद स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग उनको ओएसडी बना दिया गया है। तैयब फरीद स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग तैनात किए गए हैं। आमर हुसैन गाजी केन कमिश्नर पंजाब तैनात कर दिया गया है। आसिफ मजीद डीजी कायदे आज़म अकेडमी को ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि जमील अहमद जमील को एडिशनल डीजी कायदे आज़म अकेडमी तैनात किया गया है। आगा ज़हीर अब्बास शिराजी एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल जनूबी पंजाब तैनात किए गए हैं। तारक करीम खोकर एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत, मोहम्मद साजिद बशीर एडिशनल सेक्रेटरी बल्दियात, कमल साबिर डिप्टी सेक्रेटरी स्कूल, तौकीर अहमद सीनियर इंस्पेक्टर MPDD, जबकि जाहिद परवेज DG PH फैसलाबाद का तबादला करके उनको डिप्टी सेक्रेटरी दाखिला पंजाब तैनात किया गया है। बहुत शुक्रिया हसन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब बात करेंगे ईद उल फितर की तैयारियों के हवाले से। ईद उल फितर की तैयारियां रूज पर पहुंच गईं। खवातीन का मेहंदी लगवाने के लिए यतीम खाना बाजार का रुख, जूते, ज्वेलरी और बैग्स की खरीदारी भी जारी। मर्द हजरात भी मनपसंद कपड़े खरीदने में मसरूफ हैं। तफसीलात जानते हैं अवैस महमूद से, जो कि इस वक्त वो मौजूद हैं चौक यतीम खाना में। जी अवैस, बताइएगा कैसी सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल, ईद उल फितर की मुनासबत से शहरियों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ बाज़ारों का जहाँ रुख कर रही है, तो वहीं शहरी जो है ईद उल फितर की तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम इसमें मौजूद हैं चौक यतीम खाना बाज़ार में, और मेन बाज़ार में खासा रश दिखाई दे रहा है, और इससे मिलकर छोटी मार्केट जो है यहाँ पर भी खासा रश है। ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो अपने कपड़े तैयार होने के बाद अब जूते, ज्वेलरी, बैग जो जहाँ खरीदती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं यहाँ पर जो ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो मेहंदी जो है वो भी लगवाते हुए चांद रात की तैयारियाँ जो है वो भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ ख़वातीन जो है वो अपनी तैयारी करती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं मर्द हजरात भी अपने लिए जो है अब खास तौर पर रेडीमेड जो कुर्ता शलवार जो है उसका रुझान यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और उसके साथ साथ सैंडल, खुस्से और ख़ास तौर पर पेशावरी चप्पल जो है उसका इंतखाब किया जा रहा है। जो जो ईद करीब आती जा रही है, शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है जहाँ मार्केट्स का रुख कर रही है, तो वहीं अपनी तैयारियाँ जो हैं वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि मुकम्मल की जा सकें। तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल जहाँ की जाती आखिरी दिन तक जो है वो की जाती हैं, लेकिन चांद रात तक जो है शहरियों का कहना है कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो रह जाती है, जिसकी वजह से शहरियों को फिर से चांद रात को बाजार का रुख करना पड़ता है। शहरी, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी जो हैं चौक यतीम खाना बाजार में खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस महमूद। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ महरूख खालिद और मैं हूं अनम फारूक। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़े और सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब में मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स की मंजूरी। लेडी वेलिंगटन अस्पताल की अपग्रेडेशन के लिए 69 करोड़ 53 लाख रुपए की मंजूरी। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हसन रजा से। हसन, आगाह कीजिएगा। सुबह पंजाब में मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 10 तरक्याती स्कीमों के लिए 23 अरब 56 करोड़ 10 लाख 90 हज़ार रुपए के करीब मंजूरी दे दी गई है। और इस इजलास की सदारत चेयरमैन महकमा तरक्याती मनसूबाबंदी बोर्ड अली सरफराज हुसैन ने की, जिसमें पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर एंड सैनिटेशन मनसूबा पायलट फेज क्लस्टर साउथ 3 लियाकतपुर के लिए 2 अरब 10 करोड़ रुपए जारी किए मंजूरी दी गई है। इसी तरह पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर एंड सैनिटेशन मनसूबा जो सेंट्रल 1 बवाना के लिए 90 करोड़ रुपए के करीब मंजूरी दी गई है। इसी तरह तहसील खैरपुर भावरपुर में 1 अरब 33 करोड़ रुपए और इसी तरह फेज क्लस्टर नॉर्थ के लिए 1 अरब 44 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल लाहौर में इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर, रेडियोलॉजी, लॉन्ड्री एंड पैथोलॉजी डिपार्टमेंट तरमीमी की अपग्रेडेशन के लिए तकरीबन 70 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। और पंजाब में ऑनलाइन शुमारियाती निज़ाम की तरक्की तरमीमी के लिए 60 करोड़ रुपए से ज़ायद की मंजूरी दे दी गई है। इस वाले से महकमा खजाना पंजाब को बाकायदा इनवाइस जारी की जा रही है कि ये फंड भी जारी किए जाए। जी बहुत शुक्रिया हसन, आप हमें आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करें, समनाबाद मोड़ अंडरपास की तामीर का काम तेज़ी से जारी। लेस्को ने सर्विसेज की मुंतकली। खुशबू के झोंकों से दिलो दिमाग मुअत्तर हो जाए। इतर वो खुशबू जो सभी को लुभाए, मगर महंगाई ने इतर की महक को अब दुकानों तक महदूद कर दिया है। 50% कीमतें बढ़ने से जहां खरीदार सरफे नज़र कर रहा है, वहीं दुकानदार भी परेशानी में मुब्तला है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। बदन, लिबास और बातें अगर खुशबूदार हों तो ऐसी शख्सियत सभी के लिए जाजिब नजर आती है। इतर लिबास की खुशबू और माहौल को मुअत्तर करने में मुनफरिद हैसियत का हामिल है। खुशबू लगाना जहां सुन्नत नबवी है, वहीं ईद के अयाम में इसकी अफादियत दो चंद हो जाती है। खुशबू से ताजगी के इस एहसास को भी महंगाई ने अपनी लपेट में ले लिया है। अत्तार की दुकानों पर सजे इतर जो कभी सबकी पहुंच में थे, अब नहीं रहे। कीमतें 50% से भी तजावज कर चुकी। मुख्तलिफ अकसाम के इतर 400
से 1000 रुपए तोला तक बिकने लगे। पापड़ी मंडी शालम मार्केट कतीमी इतर फरोश सैयद मोहम्मद मारूफ अंजम कहते हैं, डॉलर की ऊंची उड़ान ने दरामदात को मुश्किल बना दिया। इतर महंगे बेचना मजबूरी बन गया है। 50% जो है वो जनाब अली रेट बढ़ गए हैं और 50% कस्टमर जो है ना मजबूर हो गया, और हर कस्टमर आके ज़ाहिर है हमसे नाराज़ होता है कि जी आपने इतने रेट बढ़ा दी। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकते। खुशबू की दुकान पर भी महंगाई ने माहौल को मकदर बना रखा है। दुकानदार कहता है कि हमें भी जो है ना आगे से माल नहीं मिल रहा, तो जिस वजह से हमें भी नुकसान होता है। क्लाइंट की कोशिश ये होती है कि हमें चीज़ सस्ती मिल जाए ताकि हम अपना एक चीज़ लेने के बजाय हम 2 लेके जाएं। जो मेरी खुशबू वो आ जानी थी कोई 300-400 रुपये में, वो अब 1200-1300 रुपये की हो रही है। तो मैंने जो 1200-1300 की लेनी थी, अब सिर्फ 150-200 रुपये की वो एक शीशी ली है। लिबास और बातों से महक कैसे आए जब महंगाई से सांस लेना भी महाल हो। खुशबू हर खास व आम को पसंद है, मगर अब इतर की खुशबू महंगाई के सामने फीकी पड़ने लगी है। मार्केट में महंगी और सस्ती खुशबू मौजूद, लेकिन खरीदारी के रुझान में खासी कमी हुई है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। और अभी आपको बताएं, मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन डिवीजन की कार्रवाइयां जारी हैं। कत्ल, अंधे कत्ल और नकबजनी में मुलव्विस 10 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। ये रिपोर्ट देखिए। गालिब मार्केट में एसपी मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन शहजाद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था कि फैसल टाउन नहर से मिलने वाली 22 साला लड़की के अंधे कत्ल का मुअम्मा हल कर लिया गया। लड़की की शिनाख्त उम्मे अमारा के नाम से हुई, जिसे इज्तिमाई ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। मुल्जिमान बिलाल, रजा और हमजा ने उम्मे अमारा को जिना अस्पताल चौक से अगवा किया। 22 साल की बच्ची जो स्पेशल चाइल्ड थी, उसको जिना हॉस्पिटल के पास से किडनैप किया गया। किडनैप करने के बाद उसके साथ रेप किया गया और उसको कत्ल करने के बाद उस बच्ची की लाश को नहर में फेंक दिया गया। वो कुएं के अंदर जो 3 कस मुल्ज़मान थे उनको गिरफ़्तार किया। उनमें से 2 मुल्ज़मान आइडेंटिफिकेशन परेड के बाद हमारे पास हैं और तीसरा मुल्ज़म जो है वो आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए भिजवा दिया गया। शहजाद रफीक का मजीद कहना था कि 64 साला शहरी के अंधे कत्ल में मुलव्विस सगी बेटी और उसका आशना गिरफ्तार, आला कत्ल बरामद कर लिया गया। निस्टर कॉलोनी में 8 साला बच्चे को अगवा करके ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम पकड़ लिया। 64 साल के शख्स को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया और इसका मुकदमा दर्ज हुआ। एक क्लूलेस मुकदमा था, एक ब्लाइंड मर्डर था। उसकी बेटी और जो उसका आशना जिसके साथ अलेजिडली रिपोर्टेडली उनके नाजायज़ मुरासम थे, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया और उनके लिए जो बाकी कानून के किनारे में उनको लाया गया। शादमान इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकबजनी में मुलव्विस 2 मुल्जिमों को गिरफ्तार करके 30 लाख रुपए से जायद गैर मुल्की नकदी बरामद कर ली। मुल्जिम असद ने अपने बहनोई उस्मान के हमरा अपने खालू असद के दफ्तर से $10,000 और 3 लाख रुपए चोरी किए थे। और पंजाब पुलिस के ASIs और सब इंस्पेक्टर्स के कोर्सेज रिस्ट्रक्चर करने का फैसला। IG पंजाब ने कोर्सेज के दौरानिए को मुख्तसर करने की समरी वज़ीर आला को भिजवा दी। ASIs और सब इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग का दौरानिया 36 महीनों से कम होकर 18 माह रह जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, आगाह कीजिएगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का एक नया और बड़ा फैसला सामने आया है। पंजाब पुलिस के प्रोफेशनल्स ASIs और सब इंस्पेक्टर्स के ट्रेनिंग कोर्सेज को रीस्ट्रक्चर करने का फैसला किया गया है। IG पंजाब ने A, B, C और D कोर्सेज के दौरानिए को मुख्तसर करने की समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी है और प्रोफेशनल ASIs और सब इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग का दौरानिया 36 महीनों से कम करके 18 माह जो है वो रहेगा। लीड कोर्स 2 महीने, A, B और C कोर्स 1 महीने, जबकि D कोर्स 18 महीनों से कम होकर 6 माह पर मुहित होगा। रिस्ट्रक्चर सिस्टम के मुताबिक जो ASIs और सब इंस्पेक्टर पुलिस ट्रेनिंग इदारों में 7 माह तरबियत लेंगे। इस इक़दाम से जो ABIs और सब इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग का मेयार बेहतर और दौरानिया मुख्तसर हो जाएगा, ऐसा कहना था IG पंजाब का। उनका कहना था कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती होने वाले सब इंस्पेक्टर इजला में A, B, C, D कोर्सेज नहीं करेंगे। ये अफसरान पुलिस ट्रेनिंग इदारों में अपनी जॉब ड्यूटी की जरूरियात से मुतल्लिका 10 हफ्ते दौरानिए का रिफ्रेशर कोर्स जो है वो करेंगे और ज़ेरे तरबियत अफसरान प्रैक्टिकल जरूरियात के मुताबिक कम वक्त में मालूमाती और अमली तरबियत हासिल कर सकेंगे और नया तरबियती निसाब जो है वो ASI और सब इंस्पेक्टर्स को बेहतर तरबियत और फील्ड तजर्बे से हमकिनार करेगा, ऐसा कहना था IG पंजाब डॉक्टर उस्मान का। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुजाहिद। ईद से कबल पंजाब फूड अथॉरिटी का स्पेशल ऑपरेशन जारी। 79 बेकरियों की प्रोडक्शन की चेकिंग की गई। नाकिस इंतजामात पर दर्जन से जायद बेकरियां बंद।
2 को भारी जुर्माने आयद किए गए। तर्जुमान पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक बेकरियों को दूध सप्लाई करने वाली 120 गाड़ियों की भी चेकिंग की गई है। 9 गाड़ियों का दूध सैंपल फेल, 3100 लीटर दूध मौके पर तल्फ कर दिया गया। ज़ायदुल मियाद केक्स और ड्रिंक्स की मौजूदगी पर मारूफ बेकरी को भी बंद कर दिया गया। सफाई के नाक़िस इंतजामात पर 2 फूड पॉइंट्स को भारी जुर्माना आयद किया गया है। महकमे माहौलियात लाहौर की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। अस्पतालों के वेस्ट का गैर कानूनी कारोबार करने वाले 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। महकमे माहौलियात पंजाब की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 2 रोज़ के दौरान एंटी स्मोक स्क्वाड की जानिब से धुआं छोड़ने वाली 171 गाड़ियों के चालान और 95,750 रुपये जुर्माना भी किया गया। इसी तरह ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बजाय पुरानी माहौल दुश्मन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर एक भट्टा गश्त मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया, जबकि माहौलियाती कवानीन के खिलाफ वर्जी पर 4 फैक्ट्री मालिकान को नोटिस भी जारी कर दिए गए। ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को की यूहन्नाबाद में खुली कचहरी। कोच लखपत के लेस्को सार्फिन ने शिकायत दर्ज करवाई। चेयरमैन BOD हाफिज सामिया मोहम्मद नुमान ने शिकायत का फौरी इजाला करने की हिदायत जारी की। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को की ज़ेर सदारत यूहन्नाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद। सार्फिन ने ओवर बिलिंग और ख़राब मीटर्स तब्दील न होने की शिकायत की। सार्फिन ने लेस्को मुलाजमीन पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम भी लगाया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को ने शिकायत सुनी और फौरी हल के अहकामात जारी किए। रिश्वत तलब करने की शिकायत पर 2 लेस्को मुलाजमीन को मुअत्तल करने की भी हिदायत। चेयरमैन BOD लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने कहा कि खुली कचहरियों के बहुत फ़वाइद मिल रहे हैं। हमने लोगों को उनके घर की दहलीज पर रिलीफ देना है। ओवर बिलिंग एक बहुत बड़ा मसला है, इस पर बोर्ड की पॉलिसी वाज़ेह है। ओवर बिलिंग की और ओवर रीडिंग की शिकायत हैं, ये बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ा जुल्म है जो एक आम आदमी के साथ हो रहा है। पहले एक आम लोग जो है वो जुल्म की चक्की में पिसा हुआ है, तो मज़ीद उसके ऊपर हम एक नाजायज़ बोझ नहीं डाल सकते। जो हुकूमत ने टैरिफ मुकर्रर किया है उसके मुताबिक जितना जिसने कंज्यूम किया उतना उसको बिल देना चाहिए। 1 रुपया भी ऊपर जो है वो हम उसके रवादार नहीं है कि हम उससे कोई बिल वसूल करें। खुली कचहरी में लीगी रहनुमा राना राशिद, डायरेक्टर कस्टम सर्विसेज लेस्को राय असगर, चीफ इंजीनियर O&M ताहिर मेऊ, SC साउथ अकील जफर सुलहरी समेत तमाम SDOs ने शिरकत की। कैमरामैन नुमैर रईस के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। सफरे नूर से वापसी। बाइक पर लाहौर से मक्का सफ़र करने वाले बाइकर्स वापस लाहौर पहुंच गए। महकमे सियाहत की जानिब से बाइकर्स के एहसास में तकरीब सजाई गई। लाहौर से मक्का मुकरमा का सफ़र बाइकर सफ़र मुकम्मल करने के बाद वापस लाहौर पहुंचे। TDCP डबल डेकर बस टर्मिनल पर बाइकर्स को खुशामदीद कहा गया। 35 बाइकर्स 3 माह कबल सफरे नूर के लिए रवाना हुए थे। बाइकर्स का कहना था कि 6 मुमालिक का टूर था। 18,000 किलोमीटर बाइक चलाई। बाइक पर सफ़र करने का मकसद टूरिज्म को फ़रोग़ देना है। फ्यूचर में भी रास्ते खुलेंगे, लोग जाएंगे, उधर से भी आएंगे और पाकिस्तान के झंडे को हम इंशाअल्लाह और बुलंद करेंगे, इसका वक़ार बुलंद करेंगे और पाकिस्तान के झंडे को पूरी दुनिया में ले जाएंगे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सऊदीया ने जो है बहुत अच्छा वेलकम किया है। सऊदीज़ जो हैं वो बहुत मेहमान नवाज हैं। GMT DCP अर्जुमंद वाहिद समेत दीगर ने बाइकर्स का इस्तकबाल किया। उनका कहना था कि सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जा रहे हैं। टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पंजाब का प्लेटफॉर्म इस तरह की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, वो चाहे एडवेंचर स्पोर्ट्स की हो, टूरिज़्म प्रमोशन की हो और चाहे कैंपिंग की हो, ये हम इसके लिए हाजिर हैं। बाइकर्स ने ईरान, अबू ज़बी, शारजा समेत दीगर ममालिक का सफ़र करते हुए सऊदीया दाखिल हुए, जहां उम्रे की अदायगी के बाद वापस आए। PHA को खसारे से निकालने के लिए अथॉरिटी की एक और कोशिश। ग्रेटर इकबाल पार्क और जेलो बोटेनिकल पार्क को इमलाक को 1 साल के लिए लीज पर देने का फैसला कर लिया गया है। ग्रेटर इकबाल पार्क की 4 और जेलो पार्क की 2 अमलाक को लीज पर दिया जाएगा। PHA ने 6 अमलाक की लीज से 17 करोड़ 56 लाख रुपए आमदन का तखमीना लगाया है। सॉफ्ट व्हील ट्रेन, बोटिंग राइड्स, पब्लिक टॉयलेट्स को लीज पर दिया जाएगा। फोटोग्राफी राइड्स, गोल्फ कार्ट्स और कैंटीन को भी लीज पर दिया जाएगा। LDA का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मुल्तान रोड, इलामा इकबाल टाउन और सब्ज़ाजार में कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतअद्दिद तामीरात मिसमार कर दी गई। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर LDA टीमों ने कार्रवाइयाँ की, जिस पर इलामा इकबाल टाउन पार्क ब्लॉक में 2 प्लॉट्स पर गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गई। मुल्तान रोड बिजली घर के करीब गैर कानूनी तामीरात भी गिरा दी गई, जबकि 28 कॉलेज ब्लॉक में गैर कानूनी तामीरात को जुज़वी तौर पर मिसमार कर दिया गया। इलामा इकबाल टाउन, आसिफ ब्लॉक और हुमा ब्लॉक में भी गैर कानूनी तामीरात को जुज़वी तौर पर गिरा दिया गया। एच ब्लॉक में कायम चक्की को बंद कर दिया गया और ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 2 असद जमान टोकर ने की।
عید الفطر پر واسا کے ورک چارج ملازمین تنخواہوں کو ترس گئے۔ حکومت کی وضع کردہ ڈیڈ لائن گزر گئی مگر تنخواہ نہ ملی۔ واسا کے 2000 سے زائد ورک چارج ملازمین تنخواہوں سے محروم ہیں۔ پنجاب حکومت نے تمام اداروں کو 17 اپریل کو تنخواہیں ادا کرنے کا حکم دیا۔ ڈیڈ لائن گزرنے کے باوجود واسا کے ملازمین کو تنخواہیں نہ مل سکیں۔ واسا کے معاشی بحران کی وجہ سے تمام ملازمین تنخواہوں سے محروم ہیں، جبکہ ریگولر افسران اور ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کر دی گئی ہے۔ اور ایم ایم عالم روڈ کو ری ڈیزائن کرنے کا منصوبہ تاحال ناکام۔ پنجاب حکومت کے 4 محکمے منصوبے پر کوئی بھی پیش رفت نہ کر سکے۔ افسران کے کئی دوروں کے بعد بھی عملی طور پر کام شروع نہ ہو سکا۔ آپ کو بتائیں پنجاب حکومت کے 4 محکمے ایم ایم عالم روڈ کو ری ڈیزائن کرنے میں تاحال ناکام ہیں، جو کہ وارڈ سٹی اتھارٹی، LTA، کمشنر آفس اور ٹریفک پولیس نے ایم ایم عالم روڈ کا ڈیزائن دیا تھا۔ ایم ایم عالم روڈ کے کئی دوروں کے بعد بھی عملی طور پر کام شروع نہ ہو سکا۔ ماضی میں بھی ایم ایم عالم روڈ کی ری ڈیزائن پر 2 منصوبے بن چکے ہیں۔ 2 مرتبہ شروع ہونے والا یہ منصوبہ فائلوں سے باہر نہ نکل سکا۔ LTA انتظامیہ کا اس بارے میں کہنا ہے کہ ایم ایم عالم روڈ منصوبے کے ڈیزائن کو حتمی شکل دے چکے ہیں اور جلد ہی اس پر عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ بلیٹن میں بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ موسم کے رنگ پھر بدلنے لگے۔ شہر میں تیز ہوائیں چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی، بارش کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ فضا بھی نکھرنے لگی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں زاہد عابد۔ موسم نے پھر کروٹ بدل لی۔ تیز ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ ہوا کی رفتار 25 سے 30 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی۔ آسمان پر ہلکے بادل موجود رہیں گے اور کہیں کہیں بادل برسنے کا امکان بھی ہے۔ شہر کے بعض علاقوں میں معمولی 3 ملی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 32 جبکہ کم سے کم 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا۔ دوسری جانب فضائی آلودگی میں بھی کمی آئی ہے۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 153 پر آ گیا۔ کینٹ میں سب سے زیادہ AQI 185 ریکارڈ، DHA فیز 8 اور مراتب علی روڈ پر AQI 174 رہا۔ اپر مال کے علاقوں میں AQI 162 ریکارڈ کیا گیا۔ بدھ کو بھی ہلکے بادل اور تیز ہوا چلتے رہنے کا امکان ہے، تاہم جمعرات سے دوبارہ سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکے گا۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ رہنما MQM عمران فاروق قتل کیس میں سزا یافتہ قیدی کی جیل منتقلی کا کیس۔ لاہور ہائی کورٹ نے IG جیل خانہ جات سے 15 مئی تک تفصیلی جواب طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق نے قیدی معظم علی کی اہلیہ سعدیہ بانو کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی طرف سے میاں داؤد ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ FIA اسلام آباد نے MQM رہنما عمران فاروق کے لندن میں قتل کا اسلام آباد میں مقدمہ درج کیا، جس میں معظم علی کو ٹرائل کورٹ اسلام آباد نے سال 2020 میں عمر قید کی سزا سنائی۔ ٹرائل کے دوران معظم علی کو اڈیالہ جیل راولپنڈی رکھا گیا۔